उसके बाद जो है बाइल है, बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द gall bladder. Cholecystokinin is released in the SI due to when fat and chyme reaches duodenum stimulate gallbladder to release the bile. Consists of bile salts, bilirubin, phospholipids, cholesterol and inorganic ions. जो बाइल के अंदर कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, एक बिलिरुबिन, ये एक प्रोटीन है। जब अगर किसी को हेपेटाइटिस ए जो होता है तो इसके अंदर ये एक येलो कलर का कंपाउंड है, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है बाइल के अंदर। तो जैसे ये बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी अल्टीमेटली ब्लड के अंदर बढ़ती है, जिसकी नतीजे में आँखों का कलर और जो है स्किन कलर वो येलो होना शुरू हो जाता है इस बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से। और उसके बाद जो है फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं। बाइल साल्ट्स, बाइल एसिड सच एज कोलिक एसिड एंड पेनोडीहाइड्रोक्सी एसिड कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन और ट्यूरिन जो है ये बाइल के अंदर मौजूद होते हैं। बाइल साल्ट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द emulsification of the fats by creating the micelles. The micelles increase the exposed surface area of the fats for lipase to do this work. अब जो बाइल साल्ट्स हैं उसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है पैंक्रियाटिक लाइपेज कोलिपेज। CKK also stimulates the release of lipase from the pancreatic duct into the duodenum. As bile is emulsifying fat droplets, lipase is chemically digesting the fat. The hydrolysis reaction results in two free fatty acid chains and a monoglyceride. These products enter the micelles and now they are called mixed micelles. Colipase coats emulsification droplets and anchors lipase to these droplets. तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम का एक्शन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो डाइग्लिसराइड फिर जो दोबारा लाइपेज का एक्शन परफॉर्म होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मोनोग्लाइसराइड, और उससे जो है एक एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल निकलता जाता है, तो इसको पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्शन कहा जाता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। The mixed micelle is absorbed by the intestinal epithelium, which has increased surface area due to villi and microvilli. The free fatty acids and monoglycerides resynthesize to become triglycerides within the epithelium cell. The fats combine with cholesterol, phospholipids, and proteins to form the chylomicron. The chylomicron is then transported into the central lacteals just deep to the epithelium, lymphatic system, venous flow via thoracic duct and into circulation. Large fat droplets enter intestine after meal. ये जो डायग्राम दिखाई गई है आपको, इसमें जो है सारा एक्शन बताया गया किस तरह जो है लाइपेज और बाइल जो है अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो bile acids and lecithin emulsify fats into smaller particles. Lipase break down fat into fatty acids and monoglycerides. MGs and FAs, monoglycerides and fatty acids, are absorbed through villi via micelles and then reform into triglycerides. Triglyceride aggregates and are combined with cholesterol, protein and phospholipid to form chylomicrons. Dietary fats in circulation. Once the chylomicron enters the blood, the apolipoprotein complex with it. Now the chylomicron complex binds into apolipoprotein
receptor on the plasma membrane for capillary endothelial cells in muscles and adipose tissue. Lipoprotein lipase digests the triglyceride. The remnant chylomicron containing cholesterol is eventually taken up by the liver. तो ये जो है डायग्राम ये आपको बताई गई है काइलोमाइक्रोन की जो है किस तरह पाथवे फॉलो करता है लीवर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। उसके बाद है द रोल ऑफ द लीवर। Produces endogenous triglycerides and cholesterol and combine with apolipoprotein to very low density lipoproteins. Very low density lipoproteins delivers triglycerides to the body cells and subsequently become low density lipoproteins. Low density lipoproteins now deliver cholesterol to the body cells. Excess cholesterol and phospholipids bond and return to the liver as cholesterol esters via high density lipoprotein. तो ये जो है यहाँ से सारा साइकिल बताया गया कि किस तरह जो है कोलेस्ट्रॉल लीवर से रिलीज़ होता है और उसके बाद जो है ये इंटेस्टाइन से पास होके और ये किस तरह जो है अब्जॉर्ब होता है लीवर से ब्लड के अंदर। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद लिपोजेनेसिस है, fat synthesis, storage. The formation of fat when blood glucose levels are high occurs in adipose tissue and in the liver. ग्लूकोज जो है वो 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल सी जो फैटी एसिड चेंज में होता यूँ है कि जब हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल उससे बढ़ जाए रिक्वायर्ड अमाउंट से तो हमारी बॉडी जो है उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो इस डायग्राम में जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है तो इसमें जो ये दिखाया गया है कि फ़ैट किस तरह जो है एडिपोज टिश्यू में फ़ैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो रही है। ये आउटसाइड द सेल वॉल है, एडिपोसाइड सेल है और उसकी इंटरनल लिपिड जो है जो वो वैक्यूल है तो वहाँ पे जाके ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स फैट्स बन के ये स्टोर हो रहे हैं। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है लिपोजेनेसिस फॉर्म अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड टू फास्ट बाय डीअमाइनेशन। आइसोल्यूसिन leucine and tryptophan can be converted to acetyl CoA which can be transferred into fatty acid chains. Alanine, cysteine, glycine, serine and tryptophan can be converted into pyruvate which can be indirectly converted into glycerol. तो यहाँ पे जो है डायग्राम दोबारा से दिखाई गई है कि जो है आपका जो ये जो अमाइनो एसिड है ये किस तरह इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। यहाँ ऊपर डायग्राम में आप देखेंगे तो ल्यूसीन है, लाइसिन है, फिनाइलएलानिन है, ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है। तो ये एसिटाइल सीओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये जो है पूरा एक साइकिल दिखाया गया है कि ये सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल सीओए, सक्सिनेट और मेलेट और उसमें जो है पायरोवेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और जिससे एनर्जी अखज़ की जाती है पायरोवेट। अब हेल्थ कंसर्न जो हैं एलडीएल और एचडीएल के। एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल एज़ कम्पेयर टू एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के। ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल स्टेन ये जब ब्लड के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये हार्ट डिजीज़ है, ये जो है पैदा हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। फिर सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैट्स हैं, ओमेगा 6 फैट कीटोनिक बॉडीज़ जो हैं। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं ये तो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, पॉली अनसैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है ये नैरोइंग ऑफ ब्लड वेन्स काज करती है। और जो कीटोनिक बॉडीज़ हैं ये भी एक्सट्रीम स्टारवेशन कंडीशन में प्रोड्यूस होती हैं और ये ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिन्स हैं। अब जो है लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड एथेरोस्क्लेरोसिस
plaques, cholesterol, lipids, smooth muscle cells protrude into artery lumen and reduce blood flow. Risk high blood cholesterol, LDL carrying cholesterol to organs and blood vessels contribute to development of atherosclerosis. HDL carrying excess cholesterol in the organ and blood vessels to liver help protect against the development of atherosclerosis. High HDL cholesterol treatment stents inhibit enzyme HMG coenzyme reductase catalase cholesterol synthesis reduce liver ability to produce cholesterol, decrease intracellular cholesterol, promotes production of LDL receptor, increase and liver uptake of LDL cholesterol. Degree of saturation of fats. Saturated, a fatty acid with a carbon chain containing all the hydrogen that it can hold elevates LDL cholesterol. जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता. अनसैचुरेटेड जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में 2 और मोर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं. तो ये जो है आप राइट साइड में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें देख सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड में एक के है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड है उसमें मल्टीपल 2 और मोर हो सकते हैं. कीटोनिक बॉडीज़ जो है in times of fasting or when immediate energy is needed, the liver can convert free fatty acid into acetyl CoA into ketone body. This process is called ketogenesis. Large amount of ketone bodies are released into the blood to supply the body cells. However, in a low carbohydrate diet or diabetic mellitus, the lipid triglycerides breakdown can lead to ketosis. Then if the excess ketonic bodies lower the blood pH, that is called कीटोएसिडोसिस. अब ये जो है स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया गया आपको कीटोनिक बॉडीज़ का. पहला एसीटोन है, दूसरा एसीटोएसीटेट है, और जो तीसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है. उसके बाद जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड रिलीज्ड इनटू रेशियो ऑफ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 विच इज एसोसिएटेड विद द हार्ट डिजीज एंड इंक्रीज एलर्जीज एंड अस्थमा इंसिडेंस. तो ये जो है आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की कन्वर्जन और जो है इनका रोल इन ह्यूमन बीइंग. तो इनकी एग्जांपल भी दी गई है. लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है. तो ये जो सारी चीज़ें ये आप लोग देख सकते हैं.